नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डालिम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल रोहनिया में द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर परिचर्चा के माध्यम से इंटर पास करने वाले बच्चों को भविष्य में किस तरह के कोर्स का चयन करना है, इसके लिए यहाँ पे विशेषज्ञों के बीच उनके साथ परिचर्चा हुई और ये उन्हें बताने की कोशिश की गई कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, उनको किस तरह के कोर्स का चयन करना है और किस तरह से उनको अपने भविष्य में क्या कुछ करना है। आइए मैं सीधे बात करते हैं यहाँ के विशेषज्ञों से कि वे बच्चों के साथ संवाद में क्या संदेश देना चाहते हैं। It shouldn't be at the cost of compromising your own skill set. It shouldn't be at the cost of compromising your own caliber. It shouldn't be at the cost of compromising, or compromising on your personality. See, everybody seeing Virat Kohli can be motivated by him, but everybody cannot be. Second most important thing which I would like to add on to this topic is that, see, when we talk about two aspects of the coin, that it could be a positive or it could be a negative. I always see the brighter side of this. When we talk about influencers, we don't only talk about social media. Today when we are sitting there, when we are all talking about our universities, we are also influencing them in some or the other manner. The point is very, very simple. When I talk about anything being taken only the net. And the second most important thing is, so it was a very interesting discussion I had in the morning with some of the school students in Varanasi. So I just asked them a simple question: how many of you are aware about who is the current Chief Justice of India? And to your surprise, you'll be shocked that many of the students did not know. I can even sitting in the crowd right now might be known. They don't know Georgia Meloni for the fact that she attended the G20 summit or something like that. They know them through a very funny reel, which is floating in the market and everybody is watching that. So, to gain information, if your observation skills are good, you are getting to know the Prime Minister of a particular country. No, it is just a funny reel that you are seeing, and through that you are getting to know something. I'm not giving them, but I will session more about this people. Today, I was handling a lot of things, anxiety, depression, so many ways. And these influences and the social media is also something quite easy. So that is something that I see. But I know that at times we have to do it, and some people are very loud. But how we start thinking for that? And I believe that also is inspiring the social media will influence. Our leaders can influence us towards celebrity, actors, social media. But I think there is this international media, social media, this case, needs to be quite limited and more efficiently talked about this. That's fine. Psychological discomfort, mental derailment, lack of concentration. We boast of having the greatest number of youth in India. Speaking in communication is very family. For you, you want to go ahead that you know the affirmation as well. For example, this restaurant word, this restaurant and belongs to Shilpa Shetty called the Tachi. So the opening of that restaurant had like these massive lines every day outside of it. Why? Not because people wanted to taste the food or feel the ambience, because it was the most trendy thing online. If you were there, you were cool. If you were not, then you are not acclaimed socially. So to name any of the influencers because there is some hidden agenda behind each one of them. But still, even Sir mentioned one of very big superstars of Indian cricket. It becomes challenging for universities, which are small in size. If you are making your dream to become a doctor or engineer, so you have to follow such one person who has to become the best in their position. Like if you want to become a scientist, then you have to follow that one and only one person, Dr. APJ Abdul Kalam. So there is a lots of story behind them that how he make himself in that position. I want to say like students when they start their career, means they select their stream. So first they see what is going on surrounding them. Like if
First of all, they see that like the person who has done like BTech or MBA, BBA, BCA, whatever the person surrounding them has done, and they are doing a good job. So first they dream that I also will go for the BTech and will do such kind of the job. Or if someone has done the doctorate, so they also think that I also will do the doctorate and I will select the same stream. But the thing is, successful in life, and how you can be successful in life when you will be so much satisfied, when you will be so much happy. So your happiness and satisfaction is something which you should desire always. So In my area, I hope so. The school must be having a career counselor. So I would not say anything about the career. The students know everything about the career. Okay. What happened is if you are a 8th class student, 9th, 10th, okay, your marks will be counted. Do a psychometric test that comes in with the AI. Okay, do a psychometric test. If you want to become a doctor, you are thinking you want to become a doctor, but your psychometric test doesn't think कि you want to become a doctor. You can become a scientist, you can become a professor, PhD professor, or something like that. Okay, so after psychometric test, you decide, discuss with your parents, discuss with your mentor, who in the school are there. Then after that, join the courses. If you really in the psychometric test, if the results come that you need to become a doctor or you want to be a professional in engineering or something, if you want to join the liberal arts, something like that. So then decide and make your path like that. So all of these years, like, basically I'm dealing with the students daily because of my placements are in charge as well in my faculty. So at your age, in fact, you are very young to even make a decision about that. But definitely you can choose for your career because career is something which we do for earning our livelihood. Now, career is not that what you are passionate about, or you have a choice, or you can choose because in today's time it's such a competitive time that you really have to be good at what you are doing it, and then you can make a career out of it. But as you said, sir, there are many examples. Like in fact, I can just quote up my own examples. I never chose getting into teaching. That was never my choice. I always since I remember the last when I was in 5th grade, I always remember myself writing essays on every time when our teacher used to give us that I only wanted to be an IPS officer. We have our own set of ways of working. So as long as we love and live together to have interface with amongst us, whether we have this Gurukul Parampara where teacher and student they still come together. faculty members and all the representatives of the different universities who took out time to be here. And EduFair 2024 which was organized. This is an annual event for Dallas. Thank you so much everyone for taking out time. And I'm hopeful that the students who visited the different stalls and they came to know about the different courses, the different universities, what are they offering, and they would have got a detailed information about that.
इस वक्त हमारे साथ हैं डायलिम सनबीम ग्रुप की डायरेक्टर पूजा मधुक। मैम, आज का जो ये इन्फ्लुएंसर का जो परिचर्चा हुई है, क्या पूरा आज हम लोगों ने यहाँ पे करियर फेयर का आयोजन किया है और ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से बाहर की यूनिवर्सिटीज भी बहुत सी आई है। अराउंड 50 यूनिवर्सिटीज वी इनवाइटेड एंड दे आर हियर टू एनरिच द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी हेल्प करने के लिए बच्चों के लिए आई हैं कि किस तरह के कॉलेजेस बच्चों को अपनी लाइफ में चूज करने चाहिए, कहाँ पे क्या करियर ऑप्शंस हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे क्या कटआउट है और कब उनका एंट्रेंस होगा, ये सब चीजों की नॉलेज ये यूनिवर्सिटीज आज यहाँ हम लोग के बच्चों को दे रही है। ये आयोजन केवल हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी विद्यालयों को हम लोगों ने इनवाइट किया है जिन्होंने आकर के यहाँ पे आज नॉलेज ली है। मे बी मोर देन 1500 or 2000 स्टूडेंट्स दे विजिटेड till now and many more are coming। मेरा ख्याल है कि 2000 लोग और भी अभी आएंगे, अभी still they are in the pipeline। सोच के अपने डिसीजंस लें, सिर्फ यही बोलना चाहूंगा। आके जल्दबाजी में आके दोस्तों से इन्फ्लुएंस होके, किसी अंकल आंटी इधर उधर लोगों से इन्फ्लुएंस होके ना करें, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि आप जो भी डिसीजन अभी लेंगे वो आपकी पूरी लाइफ का डिसीजन है, आपकी पूरी लाइफ इससे चेंज हो जाएगी। सोच के डिसीजन लें कि क्लास 12 के बाद क्या करना है लाइफ में। सबसे अच्छा तो ये होने वाला है कि बच्चों के पास यहाँ पे आज करियर में बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शंस होना एक साथ एक जगह एक रूफ के अंदर ही बहुत बड़ी चीज है। एंड हर कोई और कोई भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो मतलब सारे बच्चों के लिए सही होगी। आपकी अलग अलग डिमांड होगी, अलग अलग चीजें आपको परस्यू करनी है, उस हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है जिनकी अलग अलग एक्सपर्टाइज है। तो एक जगह सारी चीजें लाइक अ बुफे सिस्टम होना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर पृथ्वीश नाग, आइए जानते हैं कि आज जो डायलिम सनबीम स्कूल में इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो परिचर्चा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहना चाहेंगे कि जो 12वीं क्लास में या +2 पास करके लड़के निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, उनको अब ठीक करना है कि आगे वो किस तरह से जो है कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी यूनिवर्सिटी जाएं और कौन कौन से जो है उनके मुद्दे हैं। तो ये एक्सपोजर जो है उनको ये समझाने में सुविधा होगा कि क्या कैसे डिसीजन लेना एक समस्या है, कैसे इन्फ्लुएंस वो होंगे या कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा है। तो शायद ये जो आज की जो गैदरिंग है, इससे गैदरिंग से उनको कुछ इंडिकेशन, कुछ दिशाएं मिलेंगी कि उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे आगे ऊपर सकते हैं। साथ में उनके गार्जियंस भी हैं, वो गार्जियंस को भी हेल्प होगी कि कैसे अपने बच्चों का भविष्य को ठीक कर सकें। मेरा बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था इस पूरी कॉन्वर्जेशन का कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू लर्न वेयर टू ड्रॉ द लाइन, we have to take the goods, leave the bads, but that decision is a very personal decision. Maybe what is good for you, works for you, might not work for me. So that line, that drawing of the line कि अच्छा ये मेरे लिए ठीक है and यहाँ तक ही मैं कर सकती हूँ, it is very important। And I think today everybody, not just kids, we also need to know कि okay, this is not working out for me, let me not get influenced, let me not get drawn to things, and let me just take the goods and leave the bad। So I think that is very important। जिस उम्र में ये बच्चे अभी दुविधा की स्थिति में हैं, उनके अंदर कंफ्यूजन है कि इंटर पास करने के बाद मैं किस क्षेत्र में जाऊं, उस कंफ्यूजन को आपने इस परिचर्चा में कैसे दूर करने की कोशिश की आपने? सर, वो कंफ्यूजन हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही दूर हो सकता है। लाइक अभी हमने यहाँ पे एक एडू फेयर देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल्स टू डू दैट फॉर अस। जब मैं स्कूल में थी, मेरे लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आई पास्ड माई स्कूल, आई हैड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द ऑप्शंस दैट आई हैड, see what is interesting me। But the good part about institutions now, as we're seeing Dalins doing it, is so important that we give that opportunity to children in-house, that you know there are multiple universities, they're offering you different courses, you take that decision, you go home, decide what is working for you, what do you want to do, and then you know you don't have to go from one university to another and then find it, it's under one roof, you have multiple options to choose the best। So I think वो बहुत important है। थैंक यू सो मच। मैं विनम्र कौशल शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और हमारा डेलिम्स के साथ जो एसोसिएशन है वो काफ़ी सालों से है, क्योंकि जो यहाँ के फाउंडर्स हैं वो भी कोइंसिडेंटली हिमाचल से ही हैं बेसिकली। तो यहाँ के बच्चों के लिए और इनफैक्ट बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा इन जनरल, दैट हम लोगों को बहुत एक तरह से बहुत फोकस्ड होके अपने रोल मॉडल्स को चूज करना चाहिए। जो हम आज पैनल डिस्कशन में भी डिस्कशन हुई, उसका मेन जो क्रक्स है वो यही है कि हम लोगों को अपने हीरोज बहुत सोच समझ कर चूज करने चाहिए। हमें वैल्यू सिस्टम और अपने पेरेंट्स
की बताए निर्देश को फॉलो करना चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेटर्स जो चीजें हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए रहती हैं। वो शायद हमें आज अच्छी ना लगी, लेकिन अगर हम मोबाइल डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो हमारा जो एक्सपोजर है दुनिया का वो तो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो हमारा अटेंशन स्पैन है और जो चीजें मैटर करती हैं, जैसे हमारा स्किल सेट है या जो हमें करियर के लिए, ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए, वो शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग बड़ी विनम्रता से हर चीज जो आप करते हैं उसमें माहिर बने, ताकि आप लोग आगे करियर में और लाइफ में अच्छा कर सकें। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनीषा मल्होत्रा जी। मैं जानना चाहूंगा कि एआई तकनीकी जो बच्चों के लिए आपने बताया है, वो बच्चों के भविष्य के लिए कितना कारगर है? जी देखिए, एआई जो है वो एक टूल है और वो बहुत कारगर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन अपग्रेड हो रही है। तो डेफिनेटली वो बच्चों के अलग-अलग टाइप के करियर के लिए, उनको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ये एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तथा सारे जगह के बारे में उनको अपने मोबाइल फ़ोन्स में सारी जानकारी होती है। लेकिन ये है कि वो उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि जो मौलिक चिंतन की हमारी प्रक्रिया रही है, हमारी जो अपनी पद्धति रही है, वो डेफिनेटली इससे कहीं न कहीं थोड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं क्लासरूम में भी देखती हूँ कि बच्चे जो है वो आजकल हर चीज़ जो है वो चैट जीपीटी से खोज के ले आते हैं, और अगर उनको आप कुछ लिखने के लिए बोलिए तो उनको आधा पेज लिखने में तकलीफ आती है, क्योंकि ये एक उसका नकारात्मक प्रभाव है। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ के खास करके बच्चे जो है अपने भारतवर्ष में, वो काफ़ी कुछ अब डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। एआई एज़ अ टूल, एज़ अ टेक्नोलॉजी, एज़ अ टेक्निक, उसको हम यूज़ करके अपनी जानकारी को, अपने लर्निंग प्रोसेस को हम और बेहतर बनाएँ, इसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। So I am from SRM University, Delhi NCR Sonipat campus, and the courses which we have, that is engineering, law, management, commerce and finance, hotel management, then PhDs also. So we have all types of courses for all types of students, even science and humanities also. So like students can come to our university, they can study free of cost in my university. If they can avail 95 above percentage in class 12, they can get 100% scholarship and multiple other ways also. So that depends on student capabilities also. तो मेरा नाम अंकित है, मैं ऋषिवड यूनिवर्सिटी से हूँ। सो हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनीपत में है, तो हम लोग काफी प्रोग्राम्स नहीं ऑफर करते हैं, बल्कि हमारे पास अंडर ग्रेड में 6 प्रोग्राम्स हैं, लाइक बीएस इन बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, बीबीए इन फाइनेंस, बैचलर इन डिजाइन, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड एआई एंड बीएससी इन साइकोलॉजी। और हमारी यूनिवर्सिटी इंडिक कल्चर पे चलती है, और ऋषिवड यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनीपत में लोकेटेड है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भूपेश है और मैं फॉरेंसिक साइंस का प्रोफेसर हूँ एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एसजीटी यूनिवर्सिटी जो कि न्यू पेडागोजी को लेकर चलती है, बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, पढ़ाया जाए। और हम यहाँ पे जो डेलिम्स में आए हैं, यहाँ पे एक एजुकेशन फेयर, कैरियर फेयर बच्चों के लिए लगाया गया, जिसमें ये सुविधा प्रदान की गई बच्चों को कि किस तरीके से वो अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। हमारे साथ साथ और भी बहुत सहयोगी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, और हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी हम नॉन मेडिकल, मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं, उनको लेकर बच्चों के सामने हमने प्रस्तुत किया यहाँ पर। और बच्चों ने काफ़ी एंथुजियास्टिकली, मतलब आके उत्साहपूर्वक आकर उन कोर्सेज को समझा, उन कोर्सेज के बारे में जानकारी ली, और ये आगे आने वाला भविष्य है बच्चों का, जो वो यहाँ पर आकर अपना निर्धारित कर सकते हैं हम लोगों की गाइडेंस में। मेरे साथ हमारे और भी सहयोगी डॉक्टर शौर्य टंडन हैं, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं ये डेंटल ये सर्जरी के। तो हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल होते हुए भी बच्चों का जो नया यूथ है उसको समझाने के किस तरीके से अपने सही कैरियर का चुनाव कर सकते हैं, इसके लिए आए। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों से यहाँ पे इंटरेक्ट करके, और हम चाहते हैं कि जो हमारी एसजीटी यूनिवर्सिटी है, जो एसजीटी विश्वविद्यालय गुड़गांव में है, बच्चे वहाँ पर आएँ, विजिट करें और देखें किस तरीके से उनका कैरियर, जो अपने सीनियर्स को देखते हुए वो किस तरीके से बूम करता है कैरियर अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो फॉरेंसिक हो, इंजीनियरिंग हो या डेंटल हो, या और भी कोई ब्रांच हो। इस तरीके के कोर्सेज को लेकर वो किस तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। My name is Premraj Abhishek. I am from SR University, Warangal. Currently, my designation here is a regional manager. I come from the Warangal here to Varanasi. Firstly, I tell you about the university. University is in Warangal, Telangana.
170-acre campus. Whole campus is seamless Wi-Fi. The university has a very good ranking in engineering in NIRF. It's 98, and the university is NAAC A accredited, and also all the courses are NBA accredited. So, the most important USP of this university is the placement. University guaranteed 95% placement throughout the year. Around 40 plus students got 50 lakh plus package in this university. This is a very huge number in both Telangana state. Plus, we focused on the academic, curriculum, innovations, startup. University is highly focused on the startup because in MITI Startup Tied to Center, university is recognized as MITI Startup Tied to Center. So that's it. These are the infrastructure we are providing to the student. We invite the student to visit our campus, explore our campus, then take the decision for the taking either you want to take admission or not. My name is Yogesh Tripathi. I am from Dayananda Sagar University, Bangalore. Dear parents, हमारे कॉलेज जो है, हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 60 सालों से है बैंगलोर में। और सर हमारे यहाँ बच्चा इसलिए आ सकता है कि वो एक तो सबसे बड़ी बात कि सिलिकॉन सिटी में है, बहुत ही अच्छा पूरा कैंपस है। और बैंगलोर में वो सिर्फ हमारे कैंपस को ही नहीं कॉलेज समझे, अपना पूरे बैंगलोर को वो कैंपस समझे अपना। और रही बात सर हमारे यहाँ बच्चा क्यों है सर, क्योंकि सर हम एक बहुत पुराना ब्रांड है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है सर। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, इंडिया अब्रॉड हर जगह है सर। अगर आप बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात करें तो लॉट ऑफ कंपनीज दे विल बी हैविंग अ सेटअप इन आवर कैंपस। हमारे ही कैंपस में उन्होंने अपना खुद का सेटअप कर रखा है, इसलिए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे कैंपस में मिलेगी। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, और बस इसलिए सर आना चाहिए बच्चों को। थैंक यू। मेरा नाम दिव्या सिंह है, मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी से हूँ। बेसिकली हमारी 11 यूनिवर्सिटीज हैं, हैदराबाद, देहरादून, जयपुर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जैसा कि सर ने अभी मुझसे पूछा कि डेलिम्स के बच्चे क्यों जाएं, तो मुझे लगता है बच्चे बेसिकली 5 चीजों पे फोकस करते हैं एडमिशन लेने से पहले। पहला तो कि उनके बजट में, बजट फ्रेंडली। तो इक्फाई का अगर आप फी स्ट्रक्चर देखते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल है। सेकंड, प्लेसमेंट भी सारी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज में है। थर्ड, टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो सारे PhD होल्डर एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो एक छोटा सा डेमो आप देख सकते हैं। जयपुर कैंपस यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हैदराबाद कैंपस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टॉप है। कमिंग टुवर्ड द लास्ट थिंग, हमारे स्कॉलरशिप सर हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि किसी को भी एक बड़ा वेरी 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 इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्फाई। बाकी अगर मैं बात करूं इक्फाई का, तो हम मोर देन 30 प्लस ईयर से एजुकेशन में है। एंड वन शुड नो अबाउट इक्फाई बाय फाइंडिंग www.iudehradun.edu.in। इस पे जाके एक बार आपको सर्च करना चाहिए कि इक्फाई की USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।